Welcome back, dear teachers. And here we go with our next session, stress management. तनाव प्रबंधन जिसको कहा जाता है, और शिक्षक और तनाव प्रबंधन, तनाव का बहुत गहरा रिश्ता है. मैं 20 साल से एक शिक्षक के तौर पर बहुत तनाव में रहा, इसलिए ये बहुत आवश्यक सेशन है, जरूरी सेशन है. और हमारे अतिथि जो प्रस्तुत करने वाले हैं उनका नाम है सुश्री डॉक्टर खुशबू गज्जर. खुशबू मैडम पेशे से एक डॉक्टर हैं, अपनी सेवाएं देती हैं सूरत में, और एक उत्कृष्ट वक्ता है. इनका एक ही सेंटेंस में मैं वर्णन करूंगा. शी इज एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर्स. ओल्ड हेड इसलिए क्योंकि उनकी जो मैच्योरिटी है, स्टडी है, रिसर्च है, प्रस्तुति की कला है, ऐसा लगता है कि कोई रिटायरमेंट होने के बाद ही ऐसा स्किल पा सकता है. और यंग शोल्डर्स बिकॉज you can see, so some people are really very fortunate or say skillful that they achieved a lot. ये सेशन यादगार सेशन बन के रहेगा. मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर खुशबू गज्जर. तालियों से इनका स्वागत किया जाए. आइए मैम. Good afternoon, everyone. Am I audible clearly? Thank you. I hope you had a delicious lunch, and I hope you're not feeling sleepy. Yes or no? Yes, yes. See, it's time. I mean, the time is also like you might feel sleepy, but will not let you to sleep. Okay, let's start. Can anyone tell me, according to you, what is stress? Can anyone? Voluntarily. देखिए, सबके लिए स्ट्रेस की मैंने डेफिनेशन बहुत अलग होती है. एज वाइज भी अलग होती है, जेंडर वाइज भी अलग होती है. ठीक है, किसी के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि हाँ मैच्योर है तो इस टॉपिक पे वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू? एनी यस सर. Yes. Anyone? You are also right, sir. Any other? Any teacher? Yes, sir. Any person having so many problems is in his life which we can cause stress. But sir, what are the problems? Ma'am, Can you problem give, can be you anything. give example, because all are having different problem. Some might consider this is the problem, this is not the problem. Yes, ma'am. It is related to adolescence also in Yes, sir. students. Students, yes. Anyone? Any teacher? Beautiful young lady. Yes, sir. Ma'am, related to work, Yes, sir. Yes, sir. What is related to work? I mean. it means that if there is a lot of pending work and you could not finish it on time, Yes, then you may have deadline, this. kind of deadline. Yeah, And yeah. yes. Why all teachers are not telling there is no stress? For wife, husband is the stress, and for husband, wife is the stress. No. I want any two teacher say something about stress. Please, please, we all are having stress. See, अभी मैं एक्टिविटी करवाऊंगी, आप सब लिखने लगोगे. Yes, yes, yes. I am coming. जो घर के वर्क है तो वो भी एक स्ट्रेस है मैम, कि पढ़ाना है बच्चों को, वो भी वर्क करना Yes, ma'am. Yes, Yeah. definitely, that is true. मैम, बच्चों को पढ़ाने का स्ट्रेस, घर के काम का स्ट्रेस, Yes. पतियों का स्ट्रेस एक ही है, लेकिन उनका ज्यादा है. Yes, पति नहीं है. right. You are right, ma'am.
Ma'am, sometimes new work is allotted to you Yes. and that you can't manage to do. That stress is also a Within big time stress. limit, yes, And sometimes definitely. health issue, you are facing an health issue and you can't manage to come over it. Yes. That is also stress. Yes. One kind of. Very right. Yes, anybody else wants to share something? यस सर। सर स्ट्रेस तो हर एक प्रकार का रहता है। हमें समाज में रहना, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, जॉब का टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। लेकिन हमें कोई स्ट्रेस ऐसा रहता है हम किसी को बता नहीं सकते और खुद को इतना सोचते लेकिन बता नहीं सकते, तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? Yes, we'll see that, sir. Very Thank good. you so Yes, much. yes, yes. Thank you so much. Okay. सो जैसे कि हमने देखा कि ऑल आर हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। किसी को घर का स्ट्रेस है, किसी को वर्क का स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है, और कुछ बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। सी दोज पीपल हु हैव नॉट सेड एनीथिंग, वो ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं है, दे हैव स्ट्रेस बट दे आर नॉट एबल टू ओपन अप। विल सी लेटर। नाउ व्हाट वी विल कवर, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस क्या है पहले, एंड व्हाट आर द स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस मीन्स जो स्ट्रेस देता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, स्ट्रेस की वजह से कौन से एरिया में हमें इफेक्ट होगी। स्ट्रेस असेसमेंट स्केल, इससे हमें पता चलेगा कि हम हाई लेवल स्ट्रेस पे है या लो लेवल स्ट्रेस पे है। स्ट्रेस मैनेजमेंट and what we can do all about stress and stress management. Okay, now what is stress, जैसे कि सर ने पहले बताया कि जो भी हम नॉर्मल रूटीन कर रहे हैं उसमें थोड़ा भी चेंज आएगा तो दैट विल गिव यू स्ट्रेस। जैसे कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक है तो वो स्ट्रेस आपको देगा, कहीं ना कहीं तो देगा, क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस नॉर्मल। नाउ व्हाट आर द स्ट्रेस, acute stress, chronic stress, episodic, eustress and distress. Now what is acute stress? Acute माने जो तुरंत होता है, जैसे कि अभी आप बैठे हो, पावर चला गया तो आप थोड़े स्ट्रेस में आ जाओगे, तो वो acute है, रिसेंटली हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हो या गिर गए हो तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, हम मुझे लगा है, तो ये सब acute स्ट्रेस है जो अभी हुआ है। अनदर इज क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत टाइम से चल रहा है लेकिन आपके पास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, बहुत टाइम से है, आप इसके साथ जी रहे हो, किसी को हेल्थ कंडीशन के साथ भी आप जी रहे हो, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस बन रहा है, वो भी अपने हेल्थ पे इफेक्ट तो करेगा। अनदर इज एपिसोडिक, जैसे कि सर ने बताया जब भी डेडलाइन आएगी या कोई काम पे ये इतने टाइम पे कंप्लीट करना है, जैसे पेपर चेक करना है तो इतने टाइम पे मुझे पेपर चेक करके देना है, तो वो एपिसोडिक है, हमेशा नहीं रहता है, लेकिन एवरी 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ पे ये सब स्ट्रेस आता रहता है जो एपिसोडिक बोलते हैं। दूसरा है यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे। व्हाट इज यू स्ट्रेस, ये ऐसे स्ट्रेस है जो अपने काम में अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। स्ट्रेस तो है, फॉर एग्जाम्पल आपको कार सीखनी है तो आपको स्ट्रेस तो लगेगा, मुझे लाइसेंस क्लियर करना है, मुझे ये कार सीखनी है, तो वो स्ट्रेस तो देता है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है, ये यू स्ट्रेस है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अनदर स्ट्रेस इज डिस्ट्रेस, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको ये स्ट्रेस ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपकी ज़्यादा बनती नहीं है तब उसके साथ थोड़ा बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों बात कर रहा है, ये मेरे साथ क्यों लड़ता रहता है, लेकिन उसमें कोई चेंज होने वाले नहीं है, लेकिन यू आर टेकिंग स्ट्रेस। आप उसको चेंज करने की कोशिश, चेंज करने के ख्यालों में रहते हो, वो कोई चेंज होने वाले, क्या चेंज करना है, हमें खुद को ही चेंज करना है। तो ऐसे स्ट्रेस जो सेल्फ क्रिएटेड है, आप में भी देखो, आप स्कूल से हैं, आई हैव ऑल्सो बीन इन इंस्टीट्यूट, आई वॉज प्रोफेसर इन फिजियोथेरेपी कॉलेज, तो ये जो ज़्यादा होते हैं स्टाफ, वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता तो रहता है, लेकिन उसमें ही हमें कैसे सबके साथ मिलजुल के रहना है, वही सॉल्यूशन देना है। किसी को चेंज करने के लिए जाओगे तो वो सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर एल्डर देन मी, यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें चेंज
दूसरे को नहीं करना है. इफ यू आर ट्राइंग, स्टॉप दैट. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेसेस? मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेसेस आर इंटरनल. जैसे कि मेरे मन के अंदर जो है, आप समझ रहे हो ना कि बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे जितनी अंदर से दे रही है. खाना खाने बैठ गए और गेस्ट आ गए, तो आप अंदर से सोचोगे कि यार अभी कहाँ आ गए हैं. तो गेस्ट इज नॉट गिविंग यू स्ट्रेस, बट योर थिंकिंग, योर आई मीन योर बिलीफ इज गिविंग स्ट्रेस. कि ये जब खाना खाने से बैठे तब कोई आए तो वो मुझे स्ट्रेस देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो वो इंटरनल है. और कुछ स्ट्रेस होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं. Now these are the types of stressors that is related to personality. से आप सब में कुछ ना कुछ इसमें से मैच होगा ही होगा. One is irrational belief, values and attitude. जैसे आप देख रहे हो कि आपको पता है किसी के एटीट्यूड कैसे होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो वो भी खुद को ही स्ट्रेस देगा. दूसरों को तो देगा ही देगा, लेकिन खुद को भी स्ट्रेस देगा. टाइप ए पर्सनालिटी, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, मुझे ये सब करना ही है, मुझे ये यहाँ पे पहुँचना ही है. ये सब टाइप ए पर्सनालिटी है. ऑर्गेनाइज रहता है, ये इतना यहाँ पे क्यों नहीं है, ये यहाँ पे क्यों नहीं रखा है, ये पेपर क्यों यहाँ पे रखा है, ये अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ. ऐसे भी स्ट्रेस देते हैं ना. यस और नो? अगर नहीं है तो आपके प्रिंसिपल अच्छे हैं. अनदर इज परफेक्शनिस्ट. अगेन आई सेड अर्लियर, परफेक्ट. सबको परफेक्शन चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है कि नो वन इज परफेक्ट, ऑल आर गिविंग देयर बेस्ट. पुअर टाइम सेंस. ठीक है, मेरी डेडलाइन क्यों मिस हो रही है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं है. पुअर डिसीजन मेकिंग, ये भी हमारा सिलेबस क्यों टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, दैट इज ऑल्सो अगेन डिसीजन रिलेटेड इश्यू. एंड पुअर हैबिट्स, इधर हेल्थ और मेंटल. Now these are the personal stress. I'll go little bit early, very fast. Improper lifestyle, loneliness, marital conflict, poor physical health and financial problem. These are the personal. Environmental. जी, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वी आर टेकिंग स्ट्रेस. जैसे पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बहुत आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग है, ट्रेन में जगह नहीं है, बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बारिश है. दीज आर द एनवायरमेंटल स्ट्रेस. वो होते ही है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाते. दीज आर द स्ट्रेसर. स्ट्रेस रिलेटेड टू जॉब, पुअर नॉलेज ऑफ जॉब. मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, मुझे क्यों ये जॉब लेनी चाहिए, मुझे क्या मैं कोई और जॉब कर पाती. ये सब थोड़े स्ट्रेस हमें हमेशा जैसे ही करियर स्टार्ट करते हैं तो ये होता ही है. अनवांटेड जॉब, बहुत लोग ऐसे हैं जिसको ये जॉब नहीं करनी होती है, जो भी उन्हें मिली है. ऐसा सर्वे है कि 50% आर पीपल हेटिंग देयर जॉब, प्रेजेंट जॉब. तो ये भी एक स्ट्रेस देगा. शिफ्ट ऑफ वर्क, स्कूल में तो शिफ्ट नहीं होती है, लेकिन हेल्थ केयर और दूसरे शिफ्ट इंस्टीट्यूट में शिफ्ट ड्यूटी होती है, तो विच इज़ ऑल्सो गिविंग स्ट्रेस. यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर हाउस होल्ड वर्क एंड अदर थिंग्स. लो सैलरी, अगेन main issue because it gives financial stress. And job insecurity, जितना भी हमें अपना बेस्ट देना हम देते हैं, लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी रहती ही है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमें स्ट्रेस देता है. What are the stressors and what are the stress? Apart from these, always remember that all individual are unique. आप सबको खुद के जैसे समझना और बनाना नहीं, ट्राई मत करिए. ये इम्पॉर्टेंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल आर यूनिक एंड ऑल आर इंडिविजुअल. क्यों ऐसा है? क्योंकि सबके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सबके इफेक्ट ऑफ गेटिंग प्रेशर एंड स्ट्रेस एंड हाउ टू हैंडल इट इज़ डिफरेंट. जैसे कि कोई टीचर है, वो जैसा मैनेज करता है वैसा सेम मैनेजमेंट वो अनदर टीचर विल नॉट डू और अनदर पर्सन विल नॉट डू. ये हस्बैंड वाइफ में भी शायद रहता है कि जो हैंडल कर सकते हैं हस्बैंड, वैसा सेम मैनेजमेंट वाइफ नहीं कर पाती, और जो वाइफ मैनेजमेंट करते हैं वो हस्बैंड नहीं करते. तो ऑल आर इंडिविजुअल, ऑल आर यूनिक. सो एक्सेप्ट दैट एंड से थैंक यू, क्योंकि सब साथ में काम करेंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा. एंड रीड द फर्स्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस इज सेल्फ जनरेटेड. ठीक है,
दूसरों के विचार हमें स्ट्रेस देते हैं वो गलत है, हम ले रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस आर सेल्फ जनरेट, हमने खुद से क्रिएट किए होते हैं। क्योंकि ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लाइफ को अलग अलग चीज़ से परसीव करते हैं, उसके एक्सपीरियंस से अलग अलग चेंजेस आते हैं हमारे में, चाइल्डहुड से एडल्ट से काफ़ी कुछ से हम पसार क्रॉस होते हैं और उसकी वजह से हम ऐसे बन जाते हैं। और द वे वी आर हैंडलिंग, all people are handling different way, so all of the stress are self generated. Now what are the results of stress? Every coin has two aspects, right? तो positive and negative both result will be there. Positive stress result में क्या होगा? Improve concentration, increase performance and energy improve. आई होप यू अंडरस्टैंड कि कौन से स्ट्रेस लेने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हमारी एबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप टाइम पे काम करोगे तो ये स्ट्रेस जो भी हम, जैसे भी हमने आगे देखा यू स्ट्रेस, जिसमें हमें फ़ायदा होने वाला है, वो स्ट्रेस लेके भी हम इतने चेंजेस कर सकते हैं हमारे परफॉर्मेंस में। और व्हाट आर द नेगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट? हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कुछ भी करना है, जैसे कॉन्फ्रेंस में जाना है तो वी डोंट गेट मोटिवेटेड यूजुअली। अनदर थिंग, रिड्यूस इफेक्टिवनेस, हमारे काम के प्रति इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है स्ट्रेस लेने की वजह से। फिजिकल मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। आप देखो, आपके साथ शायद 10 15 20 साल से काम कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ मेंटली बहुत चेंज हो जाते हैं, लाइफ के साथ भी चेंज होता है, एक्सपीरियंस के साथ भी चेंज होता है। तो क्योंकि वो, जैसे कि आगे देखा हमने, क्रोनिक स्ट्रेस है, ठीक है, जो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब में चेंज होगा। These are the symptoms of stress. Will not go into detail, but as you can read, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कॉग्निटिव, दैट इज योर ब्रेन एस्पेक्ट, यू विल हैव इफेक्ट ऑन दिस। इमोशनल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स एंड बिहेवियर सिम्टम्स। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस। दीज आर द सिम्टम्स। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें से आपको सिम्टम्स दिखेंगे। Can any teacher can read cognitive symptoms, please? हाँ मैम, हाँ memory problem. Then poor judgment, constant worrying, ये सब कॉग्निटिव सिम्टम्स है, जो जैसे भी हमें आदत हो जाती है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की। दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, इमोशनल सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको, फिजिकल और बिहेवियर, ये चेंजेस है। यू कैन रीड एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन, सर विल गिव यू लेटर, राइट सर? See, all the parts of body are affecting from stress. You can see in this picture. Now, due to stress, the study has been done. Due to stress, 75% of stress जो है, वो जो person is taking, they are having pain in the neck. Is anyone having neck pain? ये तो सबको ही होना चाहिए क्योंकि हम स्ट्रेस ज़्यादा ही लेते हैं। नेक पेन है तो ये स्ट्रेस, 75% study has been shown due to stress 75% people are complaining of neck pain. Another is headache, 80%. See the percentage. Lump in throat pain हमें बार बार fever, throat pain भी रहता है. Ulcer like pain and tiredness. 90% is tiredness. We feel always tired after the job. So this is again because of stress. जॉब तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा है, जो स्ट्रेस के साथ जॉब कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑलवेज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, लेकिन हमारे घर की भी स्ट्रेस है, पर्सनल भी स्ट्रेस है, बट वी आर गेटिंग टायर्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ आवर इमोशन इज रिलेटेड टू डिजीज। सी, अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो संभाल लीजिए खुद को, क्योंकि इट विल लीड टू हार्ट डिजीज। कौन ज़्यादा गुस्सा करता है, उसको आदत होती है बार बार गुस्सा होने की। स्टूडेंट्स पे तो हम होते ही हैं, उनके अच्छे के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, अंदर भी गुस्सा रखते हैं, दे हैव हार्ट डिजीज इशू। किसी को डर है, आप देखना ये सब रिसर्च हुआ है
और ये सब रिजल्ट बाहर आए हैं। आप देखना जो भी फियर है, तो अल्सर है, बाल्डनेस है, वो क्रोनिक स्ट्रेस से जो गुजर रहे हैं। जेनेटिक का इशू नहीं है इसमें, जो रिसर्च हुआ है उसकी बात कर रही हूँ, हेयर फॉल वाली। अगर आप में जेलेसी है तो यू विल फॉल इनटू डिप्रेशन लेटर। जेलेसी नहीं रखनी है। एज आई सेड, ऑल आर यूनिक, ऑल आर इंडिविजुअल, डोंट कंपेयर विथ ईच अदर। क्रिटिसिज्म, अगर किसी को नेक पेन, नी पेन है, हिप पेन है, बैक पेन है, तो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज करते रहता है एक दूसरे को, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये देखो ऐसा बोल रही थी, इसके बारे में ऐसा करना चाहिए था, ये सब क्रिटिसाइज करता है यूजुअली। अनदर इज रिसेंटमेंट, हम किसी के प्रति नाराजगी रखते हैं, तो दैट विल ऑल्सो अवर रिड्यूस अवर लोअर अवर इम्यून सिस्टम। बार बार हम बीमार होते हैं। गिल्ट, अगर किसी बात का गिल्ट है, किसी से कुछ मिस्टेक हुए, अपराध हुए हैं, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू पेन। कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होगा। ईयर एक इज़ वेरी कॉमन, किसी को ईयर एक की कंप्लेन है, बार बार होती है किसी को। सी इट इज लर्न इन रिसर्च अपार्ट फ्रॉम पैथोलॉजिकल इश्यू। लेकिन इफ़ यू आर लिसनिंग ऑन वॉट विच यू आर एंग्री ऑन, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो आपको अगर सुनने में आए तो आपको ईयर एक होगा। आप एक्सपीरियंस करना, ऑप करना, ये ध्यान में रखना। मुझे कोई कह जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता, हाउ कैन शी टोल्ड मी लाइक दिस, तो कुछ ना कुछ लेटर ऑन आपको ईयर का इश्यू होगा, क्योंकि आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है और आप सुन रहे हैं, बिकॉज माइंड इज वर्किंग। लैक ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो थायराइड का इशू हो सकता है। जीनेटिक और बॉडी चेंजेस के थायराइड का इशू भी अलग है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड इज रिलेटेड टू योर एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स, योर emotion, so it is related to thyroid disease. Another is fear related to parents. कोई पेरेंट्स से डर रहा है क्या? आज के बच्चे तो नहीं डरते हैं। तो यूजुअली पास्ट में ऐसा होता था कि दे माइट हैव किडनी डिजीज। एंड इफ यू आर अनहैप्पी विद अदर्स, रीड द लास्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी के साथ खुशी नहीं है, एंड नॉट स्पीकिंग टू अदर, बस गुस्सा रखते हैं, हमें इसके साथ अच्छा नहीं लगता बिना रीजन के, तो डैट विल ऑल्सो गिव यू कैंसर। रिसर्च के साथ ये सब डेटा है। इफ यू वांट टू रीड दिस बुक, very beautiful book, and all the research has been done and they have written in this book, so I have taken this data from this book. Now how this stress related illness, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब डिजीज़ लेटर ऑन आती ही है। जैसे शुगर है, शुगर की बीमारी है, हेडेक है, माइग्रेन है, अब ज़्यादा खाना पचता नहीं है। अब देखो किसी को 60, 70, 80s में भी इतने अच्छे फिट होते हैं, उसका खाना भी पच जाता है, पिज़्ज़ा भी पच जाता है, लेकिन 30, 40 एज में भी नहीं पचता है। तो वो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में। अगेन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब ये है। नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क स्ट्रेस। ये 3-4 स्लाइड मैंने खास आपके लिए ली है कि आप थोड़ा और जान सके कि क्या है वर्क स्ट्रेस। देख रहे हो आप पिक्चर्स में, ये खुद को इमेजिन करिए, या कोई मतलब कोई पर्सन है या कोई और पर्सन है और आप क्राउड में है, ऐसा भी हो सकता है सर, राइट? आप में से कोई ऐसा फील किया है कि कोई आपको डांट रहा है, कोई आपके बॉम्बार्डिंग कर रहा है, ये क्यों नहीं किया, ये तूने ठीक नहीं किया, ये सब वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं ये वर्क पे होते ही है, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रेस। Again, this is also because you have pressure, you have demand, and you are not able to maintain. That gives you stress. And remember, this is not an illness; it can be cured. Now, what are the factors that create stress at workplace? Demand, right? क्या क्या डिमांड होती है वर्क पे, वर्क स्ट्रेस पे? प्लीज बताइए, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए सर, आप बताइए क्या डिमांड होती है। हाँ सर, यस सर, यस सर, देन अनदर, आपको ये कॉन्फ्रेंस में जीत के आना है, पेपर प्रेजेंट करना है, कुछ
ऐसे डिमांड होती है ना, अपने बॉस की होती है, प्रिंसिपल की होती है, हेड की होती है कि ये तो करना ही करना है। हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ये भी तो डिमांड है, राइट? अनदर इज रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिलेशन अंदर के रिलेशन, जो स्टाफ के रिलेशन अच्छे कर लो, तो काफ़ी 50 और 60% स्ट्रेस तो आपका वहीं पे कम हो जाएगा। अनदर इज चेंज, आपको कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्मॉल टॉपिक फैक्टर्स है। आज आपको ये सब्जेक्ट दिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको ये सब्जेक्ट देने वाला है, तो ये भी एक स्ट्रेस करेगा। आज मुझे मैथ्स, इस साल मुझे मैथ्स पढ़वाना था, नेक्स्ट टाइम मुझे अभी साइंस देने वाला है, तो या आई हैव टू कंप्लीट दैट, तो ये भी एक स्ट्रेस है। वर्क स्पेस पे ये स्ट्रेस कॉमन है। डिज़ाइन ऑफ टास्क, मैनेजमेंट स्टाइल, हाउ कैसे आप मैनेज करते हो, एंड वर्किंग कंडीशन, आप कौन सी कंडीशन में वर्क कर रहे हो, कैसी कंडीशन है, ये सब काफ़ी इफेक्ट करता है आपके वर्क स्टेशन पे। नाउ दिस आर द स्ट्रेस, लो, मीडियम और हाई। ये 3 में से आपको कोई ना कोई टाइप का स्ट्रेस आपका फाइनल होगा कि मैं लो स्ट्रेस में हूँ या मीडियम या हाई स्ट्रेस में। नाउ लेट्स डू वन एक्टिविटी सो वी कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। टेक a pen, you all having pen. See, I am giving you this paper. हाँ sir, I am giving you this paper and you have to mark how you are feeling. You can start read from this slide also and imagine and then mark. Ten questions are there and you क्वेश्चन have नंबर to 1, you have to mark. पिछले महीने ऐसा क्या हुआ अनएक्सपेक्टेडली जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट हुए? अगर नहीं हुए तो नेवर पे करिए। यानी कितने बार हुआ है? यदि नहीं हुआ है कभी तो 0 लिखना है आपको, बिल्कुल बहुत कम हुआ है तो 1 लिखना है, और बहुत ज़्यादा हुआ है तो 4 लिखना है। ये आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, ये आपके पास ही रहेगा पेपर, इसलिए बिल्कुल पूरे सिंसेरिटी, प्रामाणिकता के साथ इसमें रखिए और आपके पास ही रखिए पेपर। नंबर 2, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन यू फेल्ट दैट यू वर अनएबल टू कंट्रोल द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। जिंदगी में बहुत जरूरी चीजें मैं नियंत्रण नहीं कर पाया, ऐसा आपको लगा हो। बहुत बार लगा है तो 4, कभी नहीं लगा हो तो 0। नंबर 3, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट नर्वस एंड स्ट्रेस्ड। पिछले महीने आपको ऐसा लगा हो कि मैं बहुत तनाव में गया मेरा पिछला महीना, बहुत ज्यादा तो 4, और बिल्कुल तनाव नहीं था तो 0। जब आप नर्वस थे और तनाव में था, ऐसा था पिछला महीना तो। नंबर 4,
In the last month, how often you have felt confident about your ability to handle your personal problems? सी फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंट. आपका कॉन्फिडेंस देखना है उसमें. हाँ. आपको नेवर नहीं करना है. आप यू आर कॉन्फिडेंट. अब इसमें आप वेरी ऑफन लिखते हो तो अच्छा है. Number 5, in the last month, how often you have felt that things were going your way? आपको ऐसे लगा है जैसे मैं चाहता हूं वैसा ही हो रहा है मेरी जिंदगी में, जैसा मैंने चाहा वैसा ही हुआ. नंबर 5. ठीक है. Number 6, in the last month, how often you have found that you could not cope with all the things that you had to do? ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा काम करना था लेकिन वो ठीक से हो नहीं पाया, मैं कोप अप नहीं कर पाया. आपको यदि- मुझे टोटल नंबर देना है नहीं लगा है तो 0 लिखना है. तो प्लीज राइट डाउन. हाँ टिक करिए आप. आपके आंसर यही है. देखो ऊपर ये ब्लैक स्ट्रिप में लिखे ना. 0 मतलब नेवर, 1 ऑलमोस्ट नेवर, 2 समटाइम्स कभी कभी, 3 फेयरली ऑफन कई बार, और 4 वेरी ऑफन बार बार बहुत बार. नंबर 7, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल इरिटेशंस इन योर लाइफ? आपने जिंदगी में आपके जो इरिटेशंस थे उनको कंट्रोल किया. आपने आपकी जो क्या कहेंगे उसको, इरिटेशंस, जब आपको खींच आती हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने का दिल करता हो और आपने नहीं किया, संभाल लिया उस बात को. कितनी बार ऐसा हुआ वो नंबर लिखना है. Number 8, in the last month how often have you felt that you were on top of things? आपको ऐसा लगा हो कि वाह आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं टॉप पर हूं, बहुत ऊपर हूं. अगर सर ने आई फील अप्रिशिएट लाइक अ किंग. सर अगर प्रिंसिपल सर ने अप्रिशिएट किया तो विल फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड. चलिए नंबर 9, in the last month how often have you been angered because of things that happened that were outside of your control? आपके कंट्रोल में वो चीजें नहीं थी तो भी आपने गुस्सा किया. कितनी बार वो लिखना है. कंट्रोल में नहीं थी आपकी चीज, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे. नहीं कंट्रोल नहीं किया आपने, गुस्सा किया. हाँ गुस्सा किया, कंट्रोल नहीं किया. नंबर 9, सर 10. angered because of things that happened that were outside of your control. मैडम इनके कंट्रोल में नहीं थी, मतलब वो नहीं इनके, बारिश हुई, बिजली चली गई, उसमें कंट्रोल है हमारा, गुस्सा आता है लेकिन. नंबर 10, इन द लास्ट मंथ हाउ ऑफन हैव यू फेल्ट डिफिकल्टीज वेयर पाइलिंग अप सो हाई दैट यू कुड नॉट ओवरकम देम? आपको ऐसा कितनी बार लगा मुश्किलों का कोई अंत नहीं. पर्सनल में एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक घड़ा खाली भरो, दूसरा अपने आप खाली हो रहा है. जैसे सर बीमार हो गए हैं, मुझे स्कूल भी जाना ये है. मुसीबत वो मुसीबत, इधर से हाँ, मुसीबत एक उधर साथ- से मुसीबत. एक साथ बहुत सारी मुसीबतें आ गई. ऐसा आपको कितने बार लगा? ठीक है, थैंक यू. Completed all of you. Now you have to count the number. हाँ आपके कितने टोटल हुए हैं वो आपको काउंट करना है. अब जैसे आप आपने ही अपने एग्जामिनर हो, दे देखिए आप ही एग्जामिनर, आप ही आपको मार्क्स देना है. ये जैसे आप आपने मार्क्स हैं. हाँ किसी में 1 दिए हैं, 2 दिए हैं, वो आपको सब काउंट करना है. एंड दीज आर द रेंज. वो नंबर काउंट कीजिए आप. हो गए काउंट? आपने देखा वहां पे पीछे भी रेंज दी है. So ये है. See, this is the range. Now, is anyone having high stress score? Is anyone? Don't afraid to, I mean, share. जिनके 27 से 40 मार्क्स जिनको मिले हैं,
तो हाँ, वो हाई स्ट्रेस में है, हाई चिंताजनक स्ट्रेस स्थिति में है। है, यू हैव टू वर्क। ज़्यादा मार्क्स चिंता का विषय बन रहा है यहाँ देखिए। यदि 14 से 26 आपका स्कोर है, तो आपका मॉडरेट स्ट्रेस है, जितना होना चाहिए ज़रूरी उतना है। और 0 से 13 तक आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में हैं, लो स्ट्रेस है आपका। अब आप अपने पास रखिए और अपने आप से देखिए अभी हाई स्ट्रेस में है कि लो स्ट्रेस में है। ठीक है? थैंक यू। सर किसी के पास शेयर करना कितने नंबर आए हैं, आई वांट टू नो दैट। शेयर करना है आपको कितना नंबर है? हाँ, मॉडरेट। 16, यस, एनीवन? ओके, मोस्ट ऑफ लो आर 26, अच्छा एक काम करेंगे, ये देखेंगे हम भाई लो स्ट्रेस में कितने के नंबर है, कितने टीचर्स के हाथ ऊपर कीजिए ना। लो स्ट्रेस में क्या सर कम बात है। है। 1 2 3 4, अच्छा 4 टीचर लो स्ट्रेस में है। मॉडरेट स्ट्रेस में कितने हैं? 14 से 26। ओहो हो। मॉडरेट स्ट्रेस है इनका मैम, खुशबू मैम। हाँ सर, तो आपकी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मॉडरेट है। ये स्ट्रेस निकल जाएगा आपका, डोंट वरी। हाँ, हाँ सर, बहुत ज्यादा एक्टिविटी है हमारे पास। हाँ, 4, 5, 7 and 8 they need to replace the numbers like this first, then they need to add. क्या हुआ सर? मैडम यूर PSS स्कोर, ये कुछ क्वेश्चन में नंबर रिप्लेस करना है। अरे नहीं करो, फिर दोबारा करो, ठीक से करो। नहीं मैं समझा देता हूँ, एक बार लाइए इधर। अरे नहीं गड़बड़ है। सुनिए ध्यान से सुनिए। अभी आपके स्कोर में यदि 0 लिखा है आंसर में, देखो फर्स्ट रिवर्स योर स्कोर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 देखिए आप। अब उसमें यदि 4, 5, 7, 8 ये 4 क्वेश्चंस के लिए 0 है, तो वहां पे 4 मानिए आप, 4 मान के चलिए। उधर 4 लिख दीजिए। 1 लिखा है तो वहां 3 कर दीजिए। 2 लिखा है तो 2 ही रखना है। 3 है नंबर तो 3 को 1 में कन्वर्ट करना है, और 4 लिखा है तो उसको 0 में कन्वर्ट करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8। ठीक है मैम, वेरी गुड। ठीक है, अब बोलिए स्कोर। 4, 5, 7, 8। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। -11। क्या बात है। अब कितना स्कोर आ रहा है? हाउ इट रिफ्लेक्ट्स? लो स्ट्रेस, अब देखिए। लो स्ट्रेस किसने? हाँ, लो स्ट्रेस की संख्या बढ़ गई है अभी, बराबर है। मॉडरेट मॉडरेट स्ट्रेस, मॉडरेट नंबर है। और हाई? हाई स्ट्रेस, सर कुछ है? हाई स्ट्रेस तो है, 1 2 है। हाँ। ठीक है, ओके। Okay, thank you. You can keep this paper with you and you try this paper at your home. हाँ, सब आपके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए। And remember this, if you are having chest pain, dizziness, shortness of breath, see these are the symptoms. If anyone is having these are the symptoms, please immediately contact your healthcare provider. हाँ, आप निग्लेक्ट मत करिए। काफ़ी सिम्टम्स है, कुछ होते हैं, आप ध्यान दीजिए। एंग्जाइटी है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज़ इमीडिएटली गो टू एनी डॉक्टर्स एंड टेक मेडिसिन एंड टेक ट्रीटमेंट ऑफ दैट। आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, या फिर आपके रिलेशन आपके लव वन के साथ भी चेंज हो रहे हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस। सो दीज आर द एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया। मेंटल हेल्थ जहाँ से आपको स्ट्रेस मिलता ही है। हेल्थ का इशू आ गया। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कैरियर जैसे कि हमने देखा, फाइनेंस, पर्सनल, मेरी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मेरी पर्सनल ग्रोथ तो दिख ही नहीं रही है, तो दैट इज ऑल्सो गिविंग यू स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप, इम्पॉर्टेंट एरिया हम कवर करेंगे। जैसे कि कैरियर मैंने बताया कि 50% ऑफ द पीपल दे हैड दे जॉब, उनको उनकी जॉब अच्छी नहीं लगती है, 50%, ये सर्वे हुआ है। एंड
If you hate your job, then start doing this solution. Either job search करिए, change करिए if you are hating your job. ये सब ऑप्शन है. या तो कुछ अच्छा करिए, जो जहाँ पे भी है उसमें ज़्यादा अच्छा करिए, करियर चेंज करिए. यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इफ यू पॉसिबल. एंड आपका एनवायरनमेंट ठीक से करिए, तो करियर रिलेटेड स्ट्रेस थोड़ा कम इससे हो सकता है. फाइनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रेस, 70 to 75% ऑफ इंडियन पीपल दे फील स्ट्रेस अबाउट फाइनेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. रिलेशनशिप, सी ऑल रिलेशन, सी वेदर इट इज लव्ड वन और सिबलिंग्स, सबके अलग अलग रीज़न है क्यों हम उसके साथ ऐसे जुड़े हैं, और सबके अलग अलग वर्क है, तो वो भी स्ट्रेस देते हैं. तो उसको कैसे मैनेज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर इंटर रिलेटेड. अपना मेंटल हेल्थ अगर अब हेल्थी है मेंटली, तो यू डोंट हैव मच फिजिकल प्रॉब्लम. Same way, physical health is very important. Now, management. See, understand this, stress is normal. ये normal है, आपको घबराने की जरूरत. Those who are getting a high score, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये illness नहीं है, ये normal है. What you can do is, some stress can be healthy also, and some can be create problem, जैसे कि eustress and distress. And you can also live with this stress. We are leaving this stress. Huh? Sir, Pradeep bhai. नहीं, click करना. So you can manage this stress. What are the stresses you can also always manage. Now we'll see step by step. Step 1, identify if you are stressed. आपको पता तो चला कि मैं स्ट्रेस में हूँ, लो है या मॉडरेट है या हाई है. फिर स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई किए. जैसे मैंने आगे दिखाया कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसर ज़्यादा है, पर्सनल है, फाइनेंस है, फिजिकल है या मेंटल है. आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ दैट स्ट्रेसर, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी बिलीफ की वजह से या कैसे. एंड टेक अप्रोप्रिएट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टेप्स. एंड देन यू अगेन इवेल्युएट कब मेरा स्ट्रेस कितना कम हुआ. Now all of you are having one task. सर वो पेपर देना है. हाँ ना, પછી आओ. मैं आपको एक पेज देती हूँ, उसमें आपको आपके स्ट्रेस लिखना है. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिखना है, जो एक है, एक या दो है जो स्ट्रेस है वो लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा 10th में फेल हुआ है, तो इसका मुझे स्ट्रेस है, ऐसे शॉर्ट में लिखना है. ये एग्जाम्पल है, ऐसे जो भी स्ट्रेस हो लिखिए. आपका नाम नहीं लिखना है, सो डोंट वरी, लेकिन लिखना सबको है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस है ही. आई होप यू अंडरस्टैंड क्या लिखना है. कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी जॉब अच्छी नहीं लग रही है, तो लिखो. जो भी स्ट्रेस लग रहा है आप लिखो. आपके चिंता का कारण इसमें लिखना है और क्या आपके आपको- पास ही रखना है. हाँ, आपको क्या स्ट्रेस दे रहा है वो लिखो. जो आपको परेशान करता है, स्ट्रेस देता है, तनाव देता है, ये भी आपके पास ही रहेगा. नाम नहीं लिखना है, सो यू कैन राइट एनीथिंग. नाम मत लिखिए आपका. आप जैसे कि पहले बताया ना कि कोई शेयर नहीं कर पाता कि मुझे ये स्ट्रेस है, तो लिखो. सर आप नहीं लिखेंगे? सर पेज है इसमें. अब इस पेपर को आपको फोल्ड करना है, 3-4 फोल्ड कर दो और ये बाउल में डालना है. नाम तो लिखा नहीं आपने, हैंडराइटिंग किसी को कुछ पता नहीं है, और मैडम उसमें से कुछ चर्चा करेगी फिर. तो आपके जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, कॉजेस ऑफ वरीज हैं, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं. इसमें डाल दीजिए. सिलेक्टेड ही लेंगे.
डोंट हेजिटेट टू गिव, प्लीज गिव। कि मेरे प्रॉब्लम किसी को पता चल गया ऐसा मत करना। Okay, we'll do one activity now. I'll call randomly any of the teacher present over here, and they will. I'm sure he will take one sheet and read. Patel Dakshaben. हाँ, वो चीट लेंगे। एक सर माइक दे दीजिए मेरे को। Sir, no worry. Let her come. Dakshaben, you have to take one sheet. कोई पण उठाओ અને વાંચો। वर्कलोड, सैलरी प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर उनको ही दीजिए। वर्कलोड, सैलरी प्रॉब्लम। हाँ अभी देख सर उनको ही बुलाना। ओके एनी आई विल कॉल ध्रुव पटेल। हाँ, सर। नाउ ध्रुव सर, वर्कलोड एंड सैलरी प्रॉब्लम को आप कैसे मैनेज आपके हिसाब से करोगे, सबको बताइए। Workload can be managed by time management, and salary will be incremented if you perform well and student perform well. That is two solution. वेरी गुड सर। नाउ ध्रुव सर टेक वन शीट। लो Sister marriage, relationship with mom, overload with work, and sir last one. सिस्टर्स मैरिज, रिलेशनशिप विथ मॉम, ओवरलोडेड विथ वर्क एंड लैंड डायल इज नॉट क्लोजिंग। बाप रे, सर ये तो आप बहुत बैठ जाओ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है भाई। उर्मिला मैम, शर्मा, उर्मिला ज्यादा स्ट्रेस शर्मा, है ये। उर्मिला शर्मा, उर्मिला मैम। अब सॉल्यूशन बताना है आपको। आपके समस्याएं हैं और आप में से ही रैंडमली सिलेक्ट करके आप ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कितनी अजीब बात है और बढ़िया बात है। सिस्टर्स मैरिज, मैम सिस्टर के मैरिज का स्ट्रेस है, कैसे सर करेंगे? सिस्टर मैरिज का मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा पेरेंट्स को स्ट्रेस होगा, वो मैनेज करेंगे, उनके लिए बेटर क्या होगा। हाँ सर। लेकिन बड़े होने के अगर हम बड़े हैं उनसे तो हम थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, बस स्ट्रेस लेने की इतना ज़रूरत नहीं हाँ तो होती। जे जिसका भी प्रॉब्लम है प्लीज लिसन दैट। मेरे ख्याल से माँ के साथ किसी का भी रिलेशन ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता होगा, लेकिन किसी का है कि वो पर्सनल होगा सर, तो वो आपस में बातचीत करके मेरे ख्याल से कुछ सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट अदर देन कुछ भी हाँ नहीं। तो कम्युनिकेशन इज द सॉल्यूशन। यस एब्सोल्युटली सर। वर्कलोड कहाँ नहीं होता ये बताइए। अगर हम वर्क करते हैं उसको लोड लेना है नहीं लेना ये अपने आप पे डिपेंड करता है, और हम उसको लोड लेंगे तो वो हमारी मेंटेलिटी होती है, लेकिन हम अगर वर्क को लोड की तरह लेंगे तो लोड नहीं, तो हमें उसको इजीली हम उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। मामला फंसा हुआ है, जमीन बिक नहीं रही है। तो कंसल्ट वकील सर, एडवोकेट। हाँ सर। अब देखो सर थैंक यू इंडिविजुअल वेरी मच। देखिए जैसे समस्याएं हल आपके पास है ही, जिनके पास है उससे डिस्कस करेंगे, अवश्य मिलेगा। और यही मैसेज है इसका। इसमें सर- मैं थोड़ा मैम एक सर- मिनट बोलूंगा। हाँ ये सर, जो मॉम था ना, रिलेशनशिप विथ मॉम, बस एक बात हमको ध्यान में रखना है। मॉम कहा है आपने, मतलब उनकी उम्र ज्यादा है, और उम्र ज्यादा है मतलब वो अपने अंतिम पड़ाव के करीब है। तो भाई यदि मॉम गलत है, निगेटिव है, या थोड़ी सी साइकोफ्रोनिक है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है,
तो भी मैं ये कहूँगा, आपके जगह मैं होता तो यही कहता कि माँ, तुमने मेरे लिए बहुत सहा है ना, मुझे छोटे से बड़ा करने में। अब मैं तुमको सहूँगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी कद्र करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुमको जो करना है करो। माई रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी इम्प्रूव। थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैम। सर प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल मैम को ये चीट दे देंगे। मैम प्लीज आप ये एक्टिविटी बाद में करवा देंगे स्कूल में। हाँ, ये काम करना फिर, ठीक है, ये आप एक्टिविटी स्कूल में करवा लीजिए, ठीक है। प्लीज करवाइएगा। इट विल हैव प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों आपको मिल रहे हैं, वेरी गुड। दोनों मॉडल। Let's go ahead. See, what are the problem? Negative thinking is creating more problem because हम जो स्ट्रेस में है उसके रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव थॉट हमारे विचार है वो चलते ही रहते हैं. It will like cycle. Another task, आपको पॉजिटिव थिंग लिखनी है जो भी लास्ट वीक में हुई है. देखते हैं आप कितनी लिख पा रहे हैं. 10 तो लिखनी है. दस पॉजिटिव थिंग लिखनी है जो पास्ट वीक में हुई है. जैसे कि पॉजिटिव थिंग जो भी आपके साथ हुई है, जैसे कि मैं आज सुबह उठा, मैं आज जिंदा हूं तो वो भी पॉजिटिव है. मेरी हेल्थ लास्ट वीक अच्छी रही तो वो भी पॉजिटिव है. आपके लेटर पैड पे लिखना है, आपको जो दिया गया है. मिनिमम 10 लिखना है. कोशिश जरूर कीजिए. देखते हैं आप ज़्यादा लिख पा रहे हैं कि कम, क्योंकि हम पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. हम क्या लिखेंगे कि हाँ आज पानी चला गया था लास्ट वीक, ये अब ज़्यादा याद करेंगे. या बच्चों ने बहुत परेशान किया, वो ज़्यादा याद करेंगे. फिर 10 लिखनी है. निशा सिंह, निशा मैडम, कंप्लीटेड मैम. सर So 1 minute, हाँ कोई बात, मैम, 1 माइक दे मिनट. दीजिए. टीचर्स, यू डोंट वरी एट ऑल. आपके मन में शायद ये चल रहा होगा कि हमारी हैंडराइटिंग तो पता चल जाएगा, लिखेंगे. आपने लिखा है, ये आपका पर्सनल है, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. बाद में आप अपनी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है. क्या ले जाएं? बोलो, आपका क्या कहना है? आपने जो स्ट्रेसर लिखे आपके, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है. आई विल डिस्ट्रॉय, डोंट वरी. प्रदीप भाई, इसको डाल दो कहीं डब्बे में. निशा मैम बताइए 10 पॉजिटिव. सर माइक दीजिए. माइक. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज. Last week I visit to Shiv temple. यस. Then I feel better much. आपने जो लिखा है वही मैम पढ़ना है. और क्या पॉजिटिव? Visited Shiv temple in the last week. I feel very good. यस. हाँ. थैंक यू मैम. और कोई? चलिए एक एक पढ़िए फटाफट. आप यू आर टीचर्स, हैं? टीचर्स आर वेरी गुड स्पीकर्स. देखिए छोटी छोटी 10 एंड दिस इज पॉजिटिव तो टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन. 10 पॉजिटिव थिंग तो वही होगी लास्ट वीक. सुप्रिया मैम. प्लीज कम्युनिकेट. सुप्रिया मैम बताइए मैम. अच्छा हुआ आपके साथ पिछले हफ्ते में. मेरी हेल्थ पिछले दिनों से बहुत खराब थी, लेकिन अभी सही है, बहुत बेटर हो गई. यस मैम, वेरी गुड. वेरी गुड. देखिए, इलनेस में से उन्होंने रिकवर किया, ये पॉजिटिव चीज है. और लास्ट वीक कोई Any good वॉलंटियर thing done in your life? बताना चाहेगा सर? कोई वॉलंटियर?
Sir, I enjoy my holidays. I feel happy with my friends. I make more dishes in holidays. I do work happily. I play with my children. I laugh with them. I clean up my home. I care my father. सर देखिए, क्लैप फॉर हर. सर देखिए कैसे पॉजिटिव पे भी छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया जा रहा है. बहुत बढ़िया. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड क्या क्या मैम ये पॉजिटिव. कुछ कहना चाहती हैं. In the last month, my son is passed in the 10th board, and in the my parents are coming in my home. Yes, So I am happy very much and with him. थैंक यू मैम. वेरी वेरी गुड. गुड मैम. बहुत बढ़िया. सर हाँ, सर में से बुलाइए किसी को सर से. देखिए सर. बहुत अच्छी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं रहता हमारा. मैं 10th की क्लास टीचर हूँ, तो Yes. सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही थी कि 10th का रिजल्ट कैसा आएगा. तो इस बार हमारे स्कूल का 90% रिजल्ट है, तो सबसे ज़्यादा ये खुशी हुई मुझे. देन कांग्रेचुलेशन मैम. थैंक यू. देन मेरी बहन को और न्यू बेबी हुआ है अभी, वो भी खुशी की बात है. और वैकेशन की बात ये है कि फैमिली टाइम मिला यस मैम. सबके साथ. जैसे मेरा भाई बाहर ही रहता है, तो अभी वो भी घर पे आया है, और अभी सबकी बर्थडे हमने अच्छे से सेलिब्रेट की, और मेन तो है फैमिली टाइम. क्या बात है मैम. सी देखिए good, कैसे very छोटी. सर में से कोई बताना चाहेगा. हाँ जी. I have started sir. my workout after a 4-month gap, and I also visit my village after 6 years. I'm so very happy for that. थैंक यू सर. सो नाइस सर. वेरी गुड. आप बैचलर हैं कि शादी हो गई है? बैचलर. हाँ, तो शादी होगी जब बहुत ज्यादा खुशी होगी आपको. वो नोट डाउन कर देना. वाह, दिस इज वंडरफुल डे. ठीक है ना? राइट और रॉन्ग? आपकी नहीं हुई मतलब? फिर बराबर है. समझ में नहीं आता राइट बोले क्या रॉन्ग बोले. ठीक है, कंटिन्यू मैम प्लीज. ओके ऑल ऑफ यू. अभी आप एक्टिविटी करेंगे, साथ में करेंगे. ये ग्रुप एक्टिविटी है. अभी सबको हंसना है. और कैसे हंसना है? सी दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाफिंग. मैम आप स्कूल में करवाइए, तो सेशन भी करवाइए लाफिंग के. इट हैव हेल्थ बेनिफिट. कैसे हंसना है देखो. आप सबने देखा ही होगा अर्चना पूरन सिंह कैसे हंसती है. सबने देखा ही होगा. जोर से हंसना है. हंसिए हंसिए. देखो हम हंसने में भी कितना सी वी फील शाई व्हाइल लाफिंग. हाँ हंसिए. हाँ 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 हंसिए. हाँ सर हंसिए. हंसने की मैं आपको वजह देता हूँ. चलो आइए सर. योगेश पटेल सर. अच्छा, हंसने का वजह दीजिए पहले. हाँ. अच्छा तो बताइए. चलो सबको लाफिंग करना है. ओके. आप सबको भी करना है. आवाज नहीं आ रही है. अच्छा चलो सर आ जाओ. चलो एक बार हाथ 3 बार करेंगे. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. क्या बात है, क्या बात है. आपका नाम क्या है? योगेश पटेल सर. योगेश पटेल सर ने जो लाफिंग की, उसके बाद मुझे एक डायलॉग याद आ गया. 3 बज गए. देखिए कैसे हंस रहे भी. क्या मैम? योगेश सर ये हंसी के साथ ये डायलॉग बोलिए आप. 3 बज गए. बस इतना ही बोलना है हंसने के बाद. और बड़ा मजा आ रहा है. देखो दूर हो गया, इनका टीचर्स मशहूर आ रहे हैं. 3 बज गए साले. क्लैप फॉर सर. क्लैप फॉर सर. बस ऐसे ही क्या हंसना बात. है. So this is the one of the management laughing. It reduce your stress. Another thing is cry therapy. हम रोने में भी ज़्यादा शाई फील करते हैं. हम we are reluctant to cry. लेकिन today we'll experience crying also. What you have to do is close your eye. All of you close your eyes and listen this music.
लिसन दिस म्यूजिक एंड आपके अंदर जो भी दर्द है उसको बाहर निकालिए। इसके लिए शायद आपको रोना पड़े, रो लीजिए। Now gradually open your eyes and आप देखिए कई लोग रो रहे हैं सर, आप देखिए। See the effect of cry therapy. See how crying is effective to reduce stress. See how cry is effective. कोई भी टीचर प्लीज कहना चाहेगा कैसा फील हो रहा था आपको, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। आई होप यू फील लाइटन। आप थोड़ा हल्का महसूस भी कर रहे होंगे। किसी के साथ शायद किसी के सामने नहीं रो पा रहे होंगे, लेकिन अभी अकेले में आपने सबने रो के दिखा दिया कि हाउ इट इज इफेक्टिव। कैसा महसूस करेगा? कोई एक Anybody volunteer would like to बताना share चाहेगा? your experience? See, this is also one therapy. It is called cry therapy. रो सब रहे थे, वो मैंने देखा। अब्राहम लिंकन कहते थे, there is no shame in tears. If you feel like a cry, relieve the pain from inside. उसको बाहर निकालिए, Yes, अंदर ma'am. के दुख को बाहर Yes, आने ma'am. दीजिए। सर टीचर बताना वो चाहेंगे? कमजोरी नहीं है कुछ। हाँ बताइए मैम। सर मेरी 1 साल पहले मम्मी ऑफ हो गई थी हाँ मैम। ड्यूरिंग फॉर कैंसर। तो अभी घर जाने का मन नहीं होता है क्योंकि अकेले पड़ गए, कोई देखने वाला नहीं है। तो वी फील वेरी बैड। It is natural. We are very, very sorry. But your mom will be very happy to see you happy. Remember this. लोग अक्सर जब मर जाते हैं अपने घर में के, जब भगवान के यहाँ स्वर्ग सिधार जाते हैं ना, सूक्ष्म रूप में वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमको देखते हैं। हम यदि खुश रहेंगे तो उनकी आत्मा को भी अवश्य शांति मिलेगी। Sorry ma'am, thank you. And now to reduce your stress furthermore, we'll do another activity. Now please all of you stand up.
सर आप इधर आ जाइए। नहीं, नहीं। और आपको आपके बाजू में जो सर है मैम है और सर है, उनको हग करना है। गले मिलना है। व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग हगिंग? गले मिलना है। किसी को भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि ये लाइन में टीचर है तो वहाँ पे नहीं जाके कर सकते हैं। वी वर डूइंग लाइक दैट, वी यूज्ड टू हग ईच एंड एवरी पर्सन। So it has kinesthetic effect. It reduce our stress hormone also. And research is saying that आपको दिन में 5 से 7 बार हग करना है। बच्चे को हग करिए, हस्बैंड या वाइफ को हग करिए, राइट? I hope you all do today. It has positive effect on reducing stress. नाउ अप्रिशिएट योरसेल्फ। से हम क्या करते हैं सब खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। ये हम भूल ही जाते हैं कि मेरे अंदर भी कितनी कैपेबिलिटी है, आई कैन डू ऑल्सो, आई कैन डू दिस ऑल्सो, लेकिन हम खुद को भूल जाते हैं। वी यूजली अंडर एस्टिमेट अवर सेल्फ। अभी मैं एक आपको पेज दे दूँ, उसमें आपको लव लेटर खुद को लिखना है। किसी ने लव लेटर लिखा है क्या? लव लेटर लिखना है खुद को। जैसे मैं खुशबू मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। आप देखिए किसी के बारे में तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, लेकिन खुद के बारे में लिख के दिखाइए। दो तीन लाइन तो लिखिए आप। खुद को प्यार करते हैं कि नहीं? खुद को लव लेटर लिखना है। देखिए शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लिखोगे आपको पता चले कि हाँ मेरे अंदर भी कितनी खूबियाँ है जिसको मैं प्यार करता हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। आप में बहुत खूबियां हैं, वो सारी खूबियों को याद करके अपने आप को प्रेम पत्र लिखिए आपके अंदर नेगेटिव और है उनको अपने आप को सराहिए। सर, आपके Yes. अंदर नेगेटिव है तो वो भी मैं उसको प्यार करता हूँ, वो लिखिए आप। मैं जैसा हूँ, पेपर मिला सबको? खुद को पसंद हूँ। लव लेटर आप समझ रहे हो, और वो खुद को लिखना है, खुद के बारे में। नाम लिखना है। मैं बिंदु हूँ, जैसे मैम है एक बिंदु मैम, मैं बिंदु हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। मैं याद करना पड़ रहा है कि लिख पा रहे हो? जैसे एग्जाम में लिखना होता है वैसा हो रहा है क्या? डिफिकल्ट तो रहेगा क्योंकि हमने खुद को लिखा ही नहीं है कभी लव लेटर। एटलीस्ट मिनिमम 5-6 लाइन तो लिख ली होगी सबने। यस सर, ऑल आर वेरी बिजी टू राइटिंग। आज याद कर करके लिखेंगे मेरे बारे में, खुद के बारे में मतलब। I'm very happy all are writing continuously.
Okay, done almost. I hope all have you completed now. घर जाके भी लिख सकते हैं, लेकिन आई कॉल संतोष गावित। संतोष सर, सर बताइए। सर माइक दीजिए। हाँ, यही पढ़ना है। चलो, आप बताना चाहते हैं, वेरी गुड। हम Dear one, I am very deeply understand you. In my life, each and every moment, I have know everything about you. You are Very the good, sir. pure soul with so many values, personalities, and humanitarian nature. You are the one whom I have never to lose in any moment. Be Wow, sir. always with me. Thank you. Wow, sir. Your sense. Great, sir. इसमें बहुत बढ़िया। See, आई लव see यू नहीं how लिखा you आपने are अंदर, appreciating. वो तो मेन था, बोल दिया उसमें आई लव यू। I love हाँ, you. खुद Very को आई good. लव यू भी नहीं बताते। खुद को आई लव यू की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने तो आप को सबसे बिल्कुल पहले। बोलना है। वेरी नाइस सर। हाँ, नाइस वन सर। एनीबडी एल्स वुड लाइक Any टू शेयर volunteer? वॉलंटरीली? हाँ, एनीवन? किसी को शेयर करना है? स्वयं को लिखा गया प्रेम पत्र, ये तो यूनिक कंसेप्ट है। मैम, आपने लिखा हो तो आप शेयर कर दीजिए। अभी तो नहीं लिखा। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक But है I बेटा, have चलो। written, sir. आपको चॉकलेट मिलेंगे, अब Yes, थोड़ी देर sir. शांत Yes, रहो। हाँ? मैम। मैम बताइए। सर मैम बताना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे मेरा खाना बनाना बहुत पसंद है और जब मेरे खाने की कोई तारीफ़ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट खास मैम। खासकर जब मेरे पति मेरी या मेरे खाने की या किसी भी मेरे किए हुए काम की तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाइस मैम। और अपने पति और बच्चे के साथ हर जगह घूमना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और अपने पति से अपनी तारीफ़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, मैम और आप ज़्यादा लिख सकते हैं, इट्स नाइस वन, लेकिन आपको क्या करना है, खुद को ही सामने इमेजिन करना है और उसके बारे में लिखना है कि आपको आपके अंदर क्या अच्छा लग रहा है। आईने के सामने खड़े होकर आप बहुत आईने अच्छी के तरीके से सामने। लिख सकोगे। Can do mirror work also. Now, these are the hobbies. That is one of the important thing which also reduce your stress. आप सबके पास भी कुछ ना कुछ तो हॉबी होगी। कैन समवन शेयर विद अस? आपको क्या क्या अच्छा लगे, या हम भूल गए हैं कि मुझे ये अच्छा है, मेरी हॉबी है और मुझे ये अच्छा लगता है। हम काम में इतने जुट गए कि पता ही नहीं है कि मुझे मेरे में ये अंदर हॉबी भी है जो बचपन में थी, जो अब पता नहीं है कहाँ गई है। कैन एनीवन शेयर? वॉलंटियर? यस। क्या? नाइस नाइस। और कोई बताना चाहेगा? टीचर सर? या हॉबीज नहीं है, सबके पास होगी, शायद हम भूल गए हैं। 2-3 बताइए जो आपको अच्छा लग रहा है। नो वन? ओके, विल डू वन। यस मैम। डांसिंग एंड सिंगिंग, वेरी गुड। नाउ विल डू वन हॉबी, वो सबको ही अच्छा लगता है। 2 या 3 या 4 जो भी आपको बनाना है वो पार्टनर बना लीजिए। हाँ, डांस करना है आपके पार्टनर के साथ, अकेले भी कर सकते हो, 3 या 4 ग्रुप के साथ भी कर सकते हो। आप आगे आ सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं। सबको करना है सर। सर डांस नहीं कर रहे हैं।
रहे थे। सर कम डांस करते हैं। प्लीज बैठ जाइए। अच्छा लगा? यू एंजॉय? लास्ट कब नाचे थे? कब डांस किया था लास्ट? तो ये भी एक एक्टिविटी आप करिए जिसको पसंद है। मैम आपको डांसिंग पसंद है, किसी की इसमें मास्टरी भी होगी, लेकिन हम हॉबी भूल जाते हैं, काम में इतने लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें ये भी पता है। देखिए ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि ये कुछ एक्टिविटी है जो आपको पसंद है, वहाँ पे जाना पसंद है, ये हॉबीज़ है, ये आपको आपको है पसंद है, तो आप करिए। यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ। योगा इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। हमारे एचआरसी में भी सर योगा के क्लासेस चलते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। दिस इज वन ऑफ द मशीन विच डॉक्टर कैलकुलेट योर स्ट्रेस लेवल एंड गिव ट्रीटमेंट। अब आप सब थोड़े फ्रीली बैठ जाइए, आपके पास जो भी है सब साइड पे रख दीजिए, हाथ और पैर रिलैक्स कर दीजिए। पहले आंखें बंद कर दीजिए, हाथ और पैर रिलैक्स। जो भी विचार आए आने दीजिए एंड लेट देम कम एंड गो। आंखें बंद कर दीजिए, हाथ और पैर आपके रिलैक्स है, योर हेड इज सपोर्टेड एंड लिसन दिस। Now open your eyes gradually. It was soothing music for stress relief. Meditation is another activity. Guided meditation होता है, लेकिन you can incorporate this activity in your daily life, meditation. Okay, how you, sir was, sir, share your experience, sir. आप ही बता दीजिए. How you felt? क्या विचार आ रहे थे या विचार को आप रोक रहे थे, सर बताइए. During this, I was thinking nothing, just I was in rest. Nothing was going on in my mind. Yes, sir. That was great, Yeah. sir.
सब खड़े हो जाइए और हम दूसरे हॉल में एक जाएंगे। मिनट हाँ लेट अस सर। मेक वन सिस्टम, लेट अस प्लान प्रॉपरली। वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन ग्रुप एक्टिविटी। हमको ग्रुप बनाना है। आप हाँ जल्दी सर। से, हाँ, समय को ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर 5 तक आपको बोलना है। मैडम मैनेजमेंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे ग्रुप एक्टिविटी में से। लेट अस कीप इट फॉर टीचर्स, यू कैन स्टे हियर, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर साहब। तो टीचर्स आप 1 2 3 4 ऐसा आपको कितने ग्रुप बनेंगे? टोटल आर 55। एक ग्रुप में आपको कितने चाहिए? 5 7 7 7 जा 49, 7 ग्रुप बने। आपको 1 to 7 बोलना है और वो नंबर ध्यान में रखना है। फास्ट बोलिए सर। 3 1 2 3 4, वो ध्यान में रखना 4 नंबर आपका। नहीं, 4 के बाद 5 7 1 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 नंबर ध्यान में रखना आपका 1 to 7। हाँ, अब जिन्होंने यहाँ हमारे टीचर्स बाकी हैं सर, 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5, बस जो नंबर आपका है ऑल 1 प्लीज कम हियर। जल्दी से आप आ जाइए, एक आपका ग्रुप बन गया है। ऑल वन। जिन्होंने 1 कहा वो आ जाइए। प्रदीप भाई, इनको लाइब्रेरी में ले जाओ और इनको बोलना वो मैट लेके वहां पे आसन ग्रहण कर ले। वही मैट लेके आएंगे। दो मैट लाने को कहो जल्दी से और अपना आसन ग्रहण कर ले फटाफट। ओनली 1 नंबर 1 जाइए मैम लाइब्रेरी में। नंबर 2 आ जाइए। नंबर 2 चलिए लाइब्रेरी में। मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स है अपने पास। हाँ, नंबर 3 यहाँ ये पहले यहाँ ये इकट्ठा तो हो जाइए। कितने 3 में? हमको 7 मेंबर्स चाहिए, लास्ट में 5 4 5 6 और एक कौन है भाई? ठीक है, जाइए आप नंबर 3। ग्रुप नंबर 4 आप मेरे साथ रहोगे। ग्रुप नंबर 4 वेरी गुड। ग्रुप नंबर 5 अब आपको अनाउंस करना है नेक्स्ट नंबर। ग्रुप नंबर 5 ग्रुप बनाइए और लाइब्रेरी में जाइए। मैट्रेस लेकर आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। बोलो ग्रुप नंबर 6। नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 प्लीज, आसन है वहां, आप ले लीजिए। थोड़ा डिस्टेंस रख के आप बैठ सकते हैं ताकि ग्रुप हम आइडेंटिफाई कर सके। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट ग्रुप नंबर 7। नंबर 7। वेरी गुड।
Okay, listen here. I hope you enjoy doodle and coloring therapy. Yes? See, very important. आप जितने भी स्ट्रेस में हो पहले खुद को और दूसरे को माफ करना भी सीखिए. ये इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग, आई हैव गिवन यू quotes फ्रॉम दादा भगवान. ऑल हैव यू रिसीव्ड. मैंने पेज दिया है जिसमें हिंदी में लिखा है. हाँ, अब आपकी पेन से वहां पे जय सच्चिदानंद लिखना है. जय सच्चिदानंद. राइट ऑल ऑफ यू फ्रॉम योर पेन. उसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिखिए जय सच्चिदानंद. हाँ, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं. जय सच्चिदानंद. गमन सर. गमन सर कौन है? सर बताइए क्या लिखा है. प्लीज लिसन एवरीवन, प्लीज लिसन. पढ़िए. लिसन एवरीवन. आप सबके पास अलग अलग है. प्लीज लिसन. परिस्थितियों का मुकाबला करने के बजाय उनमें से भाग छूटना, उनके सामने घुटने टेक देना या हार स्वीकार करना या आत्महत्या करना, यह तो सबसे बड़ी कायरता कहलाती है. थैंक यू सर. आप सबके पास अलग अलग है. यू कैन एक्सचेंज विद ईच अदर एंड यू कैन शेयर विद अदर्स ऑल्सो. सो दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम दादा भगवान HRS. अनदर थिंग, आप सबको अभी घर जाके आज से या कल से कहीं कभी से भी स्ट्रेस जर्नल स्टार्ट करना है. आपको जो भी स्ट्रेस दे रहा है उसके बारे में लिखना है. जैसे तारीख लिखना है, टाइम लिखना है, क्या स्ट्रेस दे रहा है वो इवेंट या जो भी कंडीशन है वो लिखनी है. और उसके बारे में लिखना है कि आपको हाई लगा, मीडियम स्ट्रेस है, लो स्ट्रेस है, और आपके रिएक्शन क्या थे. जैसे आपने गुस्सा किया तो लिखिए गुस्सा किया. आप रो रहे थे तो लिखिए रो रहे थे. ये स्ट्रेस जर्नल है. आप हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन यू स्टार्ट राइटिंग डेली and gradually you will see, when you analyze at the end of the month, you will see how you are improving in your stress level and your reaction. Okay, I hope you enjoy this session. There are many things, but well, let's not we'll do next time. And important thing is nature. Be with nature is very important. आप देखते हो जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हो तो क्या दिखता है पहले? नेचर. सो इट वो भी कुछ रीजन से ही रखा है कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका माइंड कैसे डाइवर्ट हो सके. जैसे आप स्ट्रेस को नेचर को देखें, आपका स्ट्रेस थोड़ा रिलीव होता है. एंड इफ एनी ऑफ द मैनेजमेंट टेक्निक इज नॉट वर्किंग आउट, प्लीज टेक मेडिसिन ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. प्लीज टेक, डोंट हेजिटेट. आपका स्ट्रेस अगर कुछ भी करने से ही, जैसे ये हमने जो भी एक्टिविटी की उससे नहीं जा रहा है, प्लीज टेक मेडिकल हेल्प. Okay, thank you all of you. I hope you enjoy, and I hope you do any of the activity in your daily life also. Yes or no? Yes. Thank you.